Okay, great. So recording has started, and please put your name in the chat box so that it will be recorded as your attendance. Arjun, please put your name in the chat box. Okay. So guys, in the last class, we have seen how we can draw polar plot and how we can calculate phase margin and gain margin from that plot, right? So in today's class, what we are going to do is we are going to learn how we can draw Nyquist plot, because we have to solve problems based on Nyquist plot and not on polar plot, right? So let us suppose now we have a polar plot. So मैं यहाँ पे एक polar plot draw करता हूँ. So this is our equation, or what we can say. Yeah. So this is our equation, and polar plot for this will be like something like this. If I hope you remember this. Okay. So this will be its polar plot. तो यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो रहेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, राइट? सो दिस इज द polar plot of this equation. So in order to draw Nyquist plot, what we have to do is we have to take mirror image of this plot by considering x-axis as a reference point. Okay, so see, this is our x-axis, this is our y-axis. Okay, so x-axis को रेफरेंस पकड़ के हमें मिरर इमेज करना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, राइट? सो जो हमारा एरो है, एरो रहता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 से लेके ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक, राइट? सो जब मैं इसकी मिरर इमेज लेता हूँ, सो इट विल फॉर्म वन लूप. सो एरो वुड बी लाइक दिस, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू -0. -0 नाम का कोई भी नंबर नहीं होता है, लेकिन वी हैव सीन ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 है, so the point just near this 0 from left side is 0 minus, and the point which is just close to this 0 from right side is 0 प्लस. सो यहाँ पे मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू -0 या फिर 0 माइनस, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी ओमेगा इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी. -इन्फिनिटी एग्जिस्ट, मतलब जब हम लेफ्ट साइड से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे आते हैं ना, तो वी कैन फाइंड आउट, वी कैन गेट द -इन्फिनिटी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो इस तरीके से हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करते हैं. देयर इज नो डिफरेंस इन पोलर प्लॉट एंड नाइक्विस्ट प्लॉट, मतलब लगभग सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा माइनर चेंज है. ओके, सो आई होप यू रिमेंबर हाउ वी कैलकुलेट phase phase crossover frequency and gain crossover frequency. Even if you don't remember that, we will quickly revise that and move forward. Okay. Okay, so sorry for this unnecessary line. Okay, so now let us suppose we have one more polar plot. I will just draw one more polar plot, and this plot will be for this transfer function. So our transfer function is s plus 1 and s plus 2. So our polar plot will obviously look like this. If you remember, it will look like this, right? So this would be omega is equals to 0. This will be omega is equals to infinite. And when we draw Nyquist plot, so Nyquist plot will look like this. So इसका जो एरो है वो यहाँ पे रहेगा, और ये एरो यहाँ पे रहेगा. यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 माइनस, एंड यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी. Okay, so this is how we draw Nyquist plot by using polar plot. So one more plot I just wanted to let you know, so that just a moment, guys. Guys, please give me a minute. I have emergency, so I will be back in a minute. Okay, I'm so sorry.
Hello, I'm so sorry for this disturbance. I have came to here my native town for Diwali, and that's why we may get some interruptions in between. I hope you people understand this. Okay, yeah. So no issues. So what I was discussing is, so this is the second Nyquist plot we were discussing, and one more plot that we are going to discuss, and after that we will move to our next thing. Okay, so I don't know why these things keep happening. So let us suppose we have one more transfer function in which we have one origin pole and two non-origin poles. Okay, so this is our one more transfer function. So इसके लिए जो हमारा Nyquist polar plot है, polar plot will look like this if you remember. हमारा जो polar plot है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. I hope you remember this, right? This is the polar plot of this system. So इसका जो हम मिरर इमेज लेंगे, so मिरर इमेज हमें लेना है एक्स एक्सिस को कंसीडर करके, मतलब आप यहाँ से अगर मिरर इमेज ले रहे हो, दैट वुड बी रॉन्ग, वो सही नहीं है, ठीक है? तो वी हैव टू कंसीडर एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस और इसके हिसाब से हमें मिरर इमेज लेना है, मतलब द प्लॉट विल लुक लाइक दिस, ठीक है? तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे प्लॉट बनेगा. Yeah, so this was all about the plot. Now we are going to solve few example based on this plot, and then we can discuss how can we determine the stability of system. So basically हमें क्या करना है, system की stability ही यहाँ पे determine करनी है. So one more thing guys, I just forgot to tell you कि यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक ओरिजिन पोल है और दो नॉन ओरिजिन पोल्स है, राइट? एस इज ओरिजिन पोल, मतलब एस इज इक्वल्स टू जीरो है, राइट? और एस प्लस वन, एस प्लस टू, दीज टू आर, मतलब एस इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड एस इज इक्वल्स टू माइनस टू, दीज टू पोल्स आर इन लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम एंड दैट्स व्हाई दीज आर नॉन ओरिजिन पोल्स. सो जब कभी भी, मतलब किसी भी सिस्टम में कोई ओरिजिन पोल मल्टीप्लाई होता है, लिसन टू माय वर्ड्स वंस अगेन, when we multiply or when we have one origin pole, then we draw number of encirclements. Now what does that mean? तो यहाँ पे एक ओरिजिन पोल है, दैट इज एस, राइट? सो इस एस के लिए हमें एक इंसर्कलमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो व्हाट इज दैट इंसर्कलमेंट? सो यहाँ पे मैं यहाँ से इस तरीके से एक इंसर्कलमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, या फिर करता ड्रॉ ही कर लेता हूँ. ओके, सो दिस रेडियस ऑफ दिस इंसर्कलमेंट, या फिर ये जो हाफ सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इस हाफ सर्कल की रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है. मतलब हमारे कितने भी ग्राफ अगर यहाँ पे राइट साइड में आ जाए, so it doesn't matter, those graphs will never cross this particular encirclement, ठीक है? इसका रेडियस जो है वो इनफाइनाइट है. सो इसका जो डायरेक्शन है दैट विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एनसर्कलमेंट रहेगा कब? जब हमारे पास एक नॉन ओरिजिन पोल है. लेट अस सपोज यहाँ पे एस की जगह पे एस स्क्वायर होता, तो मैं एक और इंसर्कलमेंट यहाँ पे ऐड करता, एक और इंसर्कलमेंट में यहाँ पे ऐड करता. अगेन इसकी जो रेडियस है वो रहेगी इनफाइनाइट, डायरेक्शन विल बी सेम. एस स्क्वायर की जगह पे एस क्यूब रहता तो मैं यहाँ पे तीसरी इंसर्कलमेंट ड्रॉ करता. अभी ये जो तीसरी मैंने इंसर्कलमेंट ड्रॉ की है, इसकी भी रेडियस इनफाइनाइट ही है. नाउ यू विल आस्क सर, इसकी भी रेडियस, पहले वाले की भी रेडियस इनफाइनाइट है, दूसरी वाली की भी रेडियस इनफाइनाइट है, सो व्हाई दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर? मतलब एक दूसरे के ऊपर आना चाहिए ना दोनों की रेडियस अगर सेम है तो. सो एक्चुअली दे आर ओवरलैपिंग, बट जस्ट टू डिस्टिंग्विश, मतलब उसको अलग अलग दिखाने के लिए मैंने उसको अलग अलग लिखा है, अदरवाइज दे बोथ आर सेम, वो दिखना चाहिए ना हमें, तो इसके लिए मैंने उसे अलग से ड्रॉ किया है. ओके, सो दीज आर द थिंग्स, दैट्स ऑल अबाउट नाइक्विस्ट प्लॉट. मतलब इससे ज्यादा हमें उसमें कुछ करना ही नहीं होता है. ओके, अर्जुन दीक्षित हैज रेज्ड हैंड. अर्जुन, डू यू वांट टू आस्क समथिंग और इट वाज जस्ट बाय मिस्टेक? अर्जुन अगर, ओके ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, नो नीड ऑफ सॉरी एंड ऑल. या इट हैपेंस, नो प्रॉब्लम. सो अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क इन बिटवीन, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड यू कैन पुट योर क्वेरी इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, so that I'll be happy to answer it. Yeah. So I hope this is clear till now, guys. Arjun and Raman, both of you. Is it clear कि हमें करना क्या है? अगर हमारे पास पोलर प्लॉट है तो
हम उससे नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरह से ड्रॉ करेंगे? व्हाट आर द चेंजेस? डिड यू गेट दिस? यस, ओके, फाइन, वेरी गुड, ठीक है। सो अभी लेट्स मूव टू अ वेरी जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ। I'm so sorry. This disturbance is happening today is like more than expected times. Okay. सो ठीक है, तो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट? जस्ट गिव मी। सो स्टेबिलिटी हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं गाइस? सो इसमें भी हमारे पास नाउ डोंट वरी, आई विल नॉट रिपीट दैट आरएच क्राइटेरिया एंड ऑल। या सो इसमें जो 3 टाइप्स हमारे हैं, we know how we can calculate omega p and omega g, मतलब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हमें पता है। अगर नहीं पता है तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन नाम का एक चीज होता है, ये हमने अभी तक नहीं सीखा है, सो आई विल elaborate on that as well. And the last important thing is number of poles on right hand. ओके, सो यू नो द थिंग, मतलब अगर किसी भी सिस्टम के अगर राइट साइड में पोल हो या फिर जो ग्राफ होता है उसके राइट हैंड में पोल पोल हो, तो वो सिस्टम ऑब्वियसली दैट इज अनस्टेबल सिस्टम। सो दिस इज द व्हाट वी कैन से अ फुल प्रूफ मेथड। ओके, तो जो पहली चीज है उसमें हम ओमेगा पी और ओमेगा जी या फिर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो ओमेगा पी इज फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, उसे कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? तो वी हैव सीन फॉर्मूला फॉर एंगल गाइस, राइट? एंगल, हम एंगल निकालते हैं ना, अगर एक नॉन ओरिजिन पोल है तो वी सब्ट्रैक्ट दैट एंगल tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय समथिंग, इस तरीके से हम एंगल निकालते हैं, राइट? सो ओमेगा पी निकालने के लिए हम उस एंगल के फॉर्मूला में एंगल की वैल्यू जो है वो -180 रख देते हैं। सो उसके बेसिस पे हमें एक एंगल मिलता है एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज, or that is not actually angle, that is a frequency, and that frequency, that is one of the value of omega g, sorry, omega p. So that particular frequency is called as phase crossover frequency, ठीक है? So phase crossover frequency that is omega p, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, मतलब निकालते हैं एंगल के फॉर्मूला से निकालते हैं। नाउ गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालते हैं? मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला है उस मैग्नीट्यूड को हम इक्वल टू 1 रख देते हैं। जब हम इक्वल टू 1 रख देंगे, so we will get some value of omega, and that value of omega will be called as omega g or gain cross of frequency. I hope you remember this, ठीक है? So this is omega p and omega g. सो इसकी मदद से हम किस तरीके से जज करते हैं? सो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, प्लीज टेल मी नाउ, यहाँ पे ओमेगा पी है, ओमेगा जी है, पी और जी में कौन सा अल्फाबेट एबीसीडी में पहले आता है और कौन सा बाद में आता है? विच वन कम्स फर्स्ट, पी और जी? या ऑब्वियसली जी कम्स फर्स्ट एंड पी कम्स लेटर, ठीक है? तो सो द ट्रिक इज, सी, ट्रिक क्या है? अगर ओमेगा जी ओमेगा पी से छोटा है, मतलब ओमेगा जी जल्दी आता है और ओमेगा पी बाद में आता है, ठीक है? ओमेगा जी अगर ओमेगा पी से छोटा है, सो इन दैट केस सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है? ओमेगा जी इज ओमेगा पी, ओमेगा जी इज स्मॉलर देन और लेस देन ओमेगा पी, इन दैट केस इट इज स्टेबल। एंड वाइस वर्सा क्या होगा? अगर
ओमेगा जी बड़ा है ओमेगा पी से, तो क्या होगा? सिस्टम विल बी ऑब्वियसली अनस्टेबल। और इन केस ओमेगा जी एंड ओमेगा पी बोथ आर सेम, so in that case we can say it is marginally stable. So this is the criteria guys. Okay, ओमेगा पी और ओमेगा जी के बेसिस पे हम इस तरीके से जज कर सकते हैं। लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज दिस पर्टिकुलर मेथड। दिस इज जस्ट फॉर यू नो, मतलब अगर आपको ऊपर ऊपर से जस्ट यू हैव टू सी वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, मतलब यू डोंट हैव टू गो डीप इनटू इट। सो उस केस में आप इससे जज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, so I will not recommend you this because this is not valid for all the examples. I have seen few examples in which these conditions are not true, but most of the examples, for like 80 to 90% examples, these conditions are true. Okay, so that is first thing. Now next thing is gain margin and phase margin. So gain margin और phase margin के बारे में I don't think कि मैंने कुछ discuss किया है. So for that I would just like to let you know that gain margin जो है वो gain margin होता है inverse of magnitude of our ट्रांसफर फंक्शन। अभी इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आवर ट्रांसफर फंक्शन, अभी हम क्या निकाल रहे हैं? गेन मार्जिन निकाल रहे हैं। सो इन दैट केस वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एज ओमेगा पी, मतलब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है उस सिस्टम का लेकिन किस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड निकालना है? we have to find out the magnitude at omega p. Guys, see, it is really like you know confusing, मतलब ओमेगा जी कहाँ पे रखना है, ओमेगा पी कहाँ पे रखना है। सो गेन मार्जिन के लिए हम ओमेगा पी रखेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम गेन मार्जिन निकालते हैं। एंड गेन मार्जिन अगर हमें डीबी में बोला है, मतलब अगर पूछा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन करते हैं कि फाइंड आउट गेन मार्जिन इन डीबी, तो गेन मार्जिन अगर डीबी में हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है -20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एट ओमेगा पी। यहाँ पे भी ओमेगा पी पे ही निकलेगा। अभी दिस इज ऑल अबाउट गेन मार्जिन। अभी फेज मार्जिन का क्या सीन है? फेज मार्जिन में हमें क्या करना होता है? 180 प्लस एंगल ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस, एंड ये जो हमें निकालना है वो निकालना है हमें ओमेगा जी पे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ कि गेन मार्जिन के लिए फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यूज करना है, फेज मार्जिन के लिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी यूज करना है। ठीक है, सो 180 की जगह पे तो 180 ही रखोगे। अभी एंगल ऑफ जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस क्या होता है? तो हमारे पास वो एंगल का फॉर्मूला है। एंगल का फॉर्मूला में हमें होता है ना, -90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय समथिंग एक्स वाई जी लाइक दिस। तो उस ओमेगा की जगह पे जो ओमेगा जी आएगा हमारा, एक गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की हमें कुछ वैल्यू मिलेगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। सो उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमें यहाँ पे रख देना है। सो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन इस तरीके से निकलेगा। एंड एक सोलो क्वेश्चन भी आ सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन की 1 मार्क्स के लिए आ सकता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम फाइंड आउट गेन मार्जिन, फाइंड आउट फेज मार्जिन, इस तरीके से। सो आपको इस इन फॉर्मूला की मदद से वो आप निकाल सकते हो। सो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की मदद से किस तरीके से हम सिस्टम को जज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड गाइस, दीज टू मेथड्स आर नॉट 100% एक्यूरेट, मतलब यहाँ पे 100% एक्यूरेसी हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी है, हमें इस पे रिलाई नहीं करना है। So the most accurate 101% accurate method is third one, number of poles on right hand of the system. So इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, that is z plus is equals to p plus एंड माइनस एन। अभी इन 3 टर्म्स का मतलब क्या होता है मैं आपको अगली स्लाइड में समझाता हूँ। ओके ओके, सो यहीं पे समझा देता हूँ। सो सी, z प्लस को हम कहेंगे zeros of characteristic equation in right hand of S plane। मतलब क्या हुआ? अभी हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? इज दिस। अभी जो हमारा, मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक सिस्टम है। सो ओके, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जस्ट अ सेकेंड। तो मान लीजिए कि हमारा एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जीरोस हैं
और जो राइट हैंड साइड में है, उसको डिनोट करता है ये ज़ेड प्लस, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको वो डिनोट नहीं करता है। सो जो ज़ेड की वैल्यू आएगी, वो राइट हैंड के लिए ही आएगी। सो इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग, लेकिन जब मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँगा ना, सो इट वुड बी वेरी सिंपल फॉर यू। सो नाउ दिस टर्म कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज़ poles of closed loop system, closed loop system in right hand of S plane। मतलब यही जो Z प्लस ही है, वो पोल्स को भी डिनोट करता है ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। एंड अभी P प्लस क्या है? P प्लस इज नथिंग बट नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम इन right hand side of S plane। Now guys, why I am writing this closed loop and open loop system? So if you have forgotten, let me just revise it for you। We are finding stability of closed loop system with the help of open loop system। मतलब जो हमारा transfer function है, that is open loop transfer function, isn't it? And with the help of that, we are finding stability of closed loop system। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी P प्लस जो है वो नंबर ऑफ पोल्स ऑफ ओपन लूप सिस्टम दिया है। मतलब जो फॉर्मूला हमारे सामने दिया है, जो भी हमें दिया रहेगा g ऑफ s इनटू h ऑफ s, सो वी कैन डायरेक्टली जज इट्स पोल्स। मतलब जो उसके पोल्स रहेंगे ना, वो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू ऑफ n। तो n की फॉर्मूला क्या था? z प्लस इज इक्वल्स टू p प्लस माइनस n। अभी ये प्लस प्लस क्यों लिखा है? डू यू हैव एन आइडिया? ये प्लस प्लस इसके लिए लिखा है क्योंकि ये जो पोल्स है ना, वो राइट हैंड में है, राइट हैंड साइड में है। सो दैट विल बी पॉजिटिव पोल्स, ठीक है। तो ये दोनों भी जो एंटिटीज है, दे आर लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। सो दैट्स व्हाई इट इज प्लस साइन इज गिवन देयर। Okay, so now what about this n? N is number of encirclements। So number of encirclements, सिर्फ इतना ध्यान रखो, number of encirclements of -1 plus j0 point। तो या अगर मान लीजिए कि जो encirclement है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इंसर्कलमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एन की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। अगर वो क्लॉकवाइज हुई तो एन की वैल्यू हम लेंगे नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रहेगी तो नेगेटिव। सिर्फ इतना हमें ध्यान में रखना है। सो तीन वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी मदद से वी कैन डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। ठीक है, तो अभी इतना सारा हमने पढ़ लिया। नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेक वन एग्जांपल। सो इसकी मदद से हम डिटरमाइन करेंगे कि सिस्टम किस तरीके से स्टेबल हो सकती है, किस तरीके से अनस्टेबल हो सकती है, एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो लेट मी जस्ट गिव यू वन transfer function here। So that is g of s into h of s, which is equals to k upon s into s plus 1 and s plus 4। So this is our ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो इसकी मदद से हमें क्या करना है? एक पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के बाद में what you have to do, you have to calculate or you have to draw a Nyquist plot। So you know the best thing about having a ओरिजिन पोल, अगर जब ओरिजिन पोल होता है ना, मतलब एस होता है ना, तो वहां पे हमें ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे मैग्नीट्यूड नहीं निकालना पड़ता है। वी कैन डायरेक्टली पुट इट्स मैग्नीट्यूड एज इनफाइनाइट, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इजी। तो मैं यहाँ पे मैं डायरेक्टली हमारा जो व्हाट वी कैन से पोलर प्लॉट या फिर नाइक्विस्ट प्लॉट जो भी है, वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सो दिस इज आवर ग्राफ। और यहाँ पे ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। सो यहाँ पे रहेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे रहेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 0। और जैसे कि मुझे इसे
नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है, सो आई विल टेक इट्स मिरर इमेज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे रहेगा मेरा ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 माइनस, यहाँ पे रहेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। और सिंस वी हैव वन origin pole here, I will give one encirclement as well। ठीक है, सो इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। इसकी डायरेक्शन क्या कैसे होती है, 0 से इनफाइनाइट तक। और इसकी भी डायरेक्शन कहाँ पे, इसकी भी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ पे रहेगी, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 0 की ओर। सो दिस वुड बी डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर मिरर इमेज। सो ये सिंपली हमारा बन गया नाइक्विस्ट प्लॉट। सो अभी जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था, लास्ट वाले पॉइंट में मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स ऑफ -1 + J0 पॉइंट। तो -1 + G0 पॉइंट यानी कि जो इमेजिनरी है वो तो 0 है, लेकिन -1 कहाँ पे आएगा, -1 आएगा इस एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं कहीं पे। तो मान लीजिए कि मेरा -1 जो है वो यहाँ पे है। ओके, -1 यहाँ पे है। तो देखिए गाइस, नाउ इफ यू कैन सी, इसका जो एरो है ये इस तरीके से है और इसका जो एरो है वो इस तरीके से। ओके, सो एनी डाउट और समथिंग लाइक, कुछ बजा ना अभी, डिड यू हियर दैट? गाइस गाइस, एनी डाउट? दिख रहा है ना, मतलब जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दिख रहा है ना? ओके, नो डाउट, या गुड, ठीक, ओके, ऑल इज फाइन, ठीक है। सो देखो, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स। तो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स यानी कि क्या, सी मान लीजिए कि मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। आई विल जस्ट टेक अ मार्कर ऑफ डिफरेंट कलर सो दैट इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे है, ठीक है, -1 पॉइंट। तो अभी देखो, ये जो एरो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था यही इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे एक सर्कल बन गया, देखो बन गया, ये एरो यहाँ पे है, ये एरो यहाँ पे है। सो दिस इज वन इंसर्कलमेंट। नाउ अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये एरो यहाँ पे जा रहा है और ये फिर से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से इसके, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स आर देयर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स, कितने इंसर्कलमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके अराउंड, उस -1 पॉइंट के अराउंड कितने इंसर्कलमेंट्स, कितने सर्कल बन रहे हैं, कितने क्लोज लूप बन रहे हैं। मैंने दिखाया ना अभी, एक तो जो है वो अंदर का बन रहा है और जो दूसरा है वो बाहर वाला बन रहा है। ठीक है, सी रेड कलर में जो है ना, वो वाला एक इंसर्कलमेंट हुआ, दिस इज वन। देखो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन देख लो यहाँ एक बार, ठीक है, ये वाला एक बना और जो दूसरा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब इन दो इंसर्कलमेंट्स के बीच में आ रहा है। सो नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स आर हाउ मेनी, 2, राइट, इज इट 2? आर यू विथ मी, या फिर इसमें कोई कंफ्यूजन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स अगर समझ में आते हैं, एक्सप्लेन अगेन। ओके ग्रेट, सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग। देखो, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ सो दैट इट विल बी प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, बिकॉज अगर इंसर्कलमेंट समझ में नहीं आएंगे आएंगे ना गाइस, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट, लाइक हमें स्टेबिलिटी पता ही नहीं चलेगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा पेज लेता हूँ और यहाँ पे बड़ा फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइंस। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैंने एक हमारा एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये हमारा दूसरा वाला एक्सिस है। ठीक है, ओके, सो अभी हमारा जो मेन ग्राफ था, सो मेन ग्राफ कुछ इस तरीके से था, राइट। और इसका जो मैंने पोलर प्लॉट का नाइक्विस्ट करना चाहा, तो नाइक्विस्ट, सी इसकी डायरेक्शन क्या है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 से ओमेगा इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट की ओर डायरेक्शन होती है, 0 से इनफाइनाइट की ओर। और यहाँ पे जो हम मिरर इमेज निकालते हैं इसकी, ठीक है, सो यही डायरेक्शन यहाँ पे भी रहेगी। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है गाइस, तो दिस डायरेक्शन विल बी लाइक, guys, I have some electricity issue, so I may disconnect at any point of time. Okay, so I'm not sure whether I will be connected or not. So in case if I get disconnected, please consider it as a class ended. Okay, so as of now it's all good. ठीक है, चलिए, so we will continue with it. ठीक है, so यह हमारा पोलर प्लॉट था। अभी इसका जो मैंने एक मिरर इमेज निकाला ना,
सो मिरर इमेज में दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो इनफाइनाइट। सो देखो यहाँ पे जो हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जो माइनस इनफाइनाइट है वो कहीं यहाँ पे रहेगा, जीरो यहाँ पे रहेगा एंड इनफाइनाइट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो माइनस इनफाइनाइट की तरफ से जीरो की ओर डायरेक्शन होती है और जीरो से लेके इनफाइनाइट की ओर डायरेक्शन होती है, राइट। तो देखो यहाँ से मैंने जीरो से लेके इनफाइनाइट तक डायरेक्शन दी। सो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक ये डायरेक्शन सही है। अभी ये माइनस इनफाइनाइट है ना गाइस, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, सी दिस इज माइनस इनफाइनाइट। अभी माइनस इनफाइनाइट से मुझे माइनस जीरो की ओर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये एरो इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, माइनस इनफाइनाइट से मेरा शुरू होगा और माइनस जीरो की ओर चला जाएगा, ठीक है। अभी डायरेक्शन ऑफ एरो समझ में आया कि किस तरीके से हम उसको एरोज दे रहे हैं, यहां तक समझ में आया मिरर इमेज का भी, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से माइनस जीरो की ओर या फिर जीरो की ओर और जीरो से इनफाइनाइट की ओर, इस तरीके से, ठीक है। सो सिंस वी हैव वन ओरिजिन पोल, तो हमें एक इनफाइनाइट रेडियस का एक इंसर्कलमेंट और ऐड करना होता है, ठीक है। सो दिस इज एन इंसर्कलमेंट, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें क्लॉकवाइज ही देनी होती है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन रहेगी। नाउ कंसिडर कि मैंने क्या कहा था, माइनस वन प्लस जे जीरो एक पॉइंट है, तो जे जीरो है मतलब छोड़ दो उसको, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, राइट। सो विच पॉइंट वी आर कंसिडरिंग नाउ, माइनस वन, जे जीरो को छोड़ दो, माइनस वन, तो माइनस वन कहाँ पे रहेगा गाइस, सी दिस इज आवर व्हाट वी कैन से कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर हम इसे कंसिडर करें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स रहेंगे, यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। सो माइनस वन मैं यहाँ पे फॉर एन इंस्टेंस मान रहा हूँ कि यहाँ पे है, जो माइनस वन पॉइंट है वो यहाँ पे है, मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज नॉट एक्चुअली देयर, ओके, जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ। तो सी अभी इस पॉइंट के अराउंड कितने इंसर्कलमेंट हो रहे हैं या फिर कितने क्लोज लूप फॉर्म हो रहे हैं। सो देखो ये जो एक डार्क वाली लाइन है और ये जो डॉटेड लाइन है, सो इसका एक यहां से डायरेक्शन जा रही है और यहां से, मतलब ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, समझ रहे हो ना। सी डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, दिस इज मेकिंग अ क्लोज लूप, डॉटेड लाइन प्लस दैट हाफ सर्कल, ठीक है। सो उस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल बन गया, ये वो सर्कल आपको दिख गया, छोटा वाला सर्कल आपको दिख गया, छोटा वाला जो क्लोज लूप है वो आपको दिख गया। हाफ वाला जो रियल सर्कल है, मतलब जो मैंने ड्रॉ किया ना, या एंड जो डॉटेड लाइन वाला जो सर्कल है, हाफ सर्कल, तो उन दोनों को मिला के एक क्लोज लूप उस पॉइंट के अराउंड फॉर्म हुआ। नाउ वॉच व्हाट आई वांटेड टू शो यू। सो यहां से ऑब्जर्व करना शुरू करो, अभी इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू करो और देखो डायरेक्शन कहां पे जा रही है, एरो यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है, यहां से फिर से यहां पे आ रहा है, अगेन इट इज कमिंग टू हियर एंड फ्रॉम हियर इट इज कमिंग टू हियर अगेन, राइट। मतलब यहीं से जा रहा है और यहीं पे आ रहा है। सो अगेन एक दूसरा भी क्लोज लूप इसके अराउंड फॉर्म हुआ, यस और नो, फॉर्म हुआ या फिर नहीं। आई होप इट इज क्लियर, अगर नहीं है तो फिर से, या नाउ क्लियर, ठीक है। तो इस पॉइंट के अराउंड कितने इंसर्कलमेंट है गाइस, दो इंसर्कलमेंट है। नाउ वी कैन नॉट से वेदर दीज आर टू और वन और जीरो, क्योंकि हमें इंसर्कलमेंट की डायरेक्शन भी देखनी होती है। अभी जो दोनों इंसर्कलमेंट है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, इट इज क्लॉकवाइज, बोथ आर क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना, एरो की डायरेक्शन देखो, बोथ आर क्लॉकवाइज। तो इन दैट केस वी विल टेक इट एज -2, वी विल टेक इट एज -2। एन की वैल्यू क्या रहेगी गाइस, एन की वैल्यू विल बी -2, आई होप इट इज क्लियर। वही अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होते तो उसकी वैल्यू रहती +2, ठीक है। सो अभी एन समझ में आया, तो अभी करना क्या है, अभी इसके आगे करना क्या है। सो सी नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एंगल निकाल लेना है। एंगल क्यों निकाल लेना है, क्योंकि एंगल हमें ओमेगा जी निकालना है, ओमेगा पी निकालना है, राइट, ये सब चीजें निकालनी है ना। तो इसके लिए एंगल और मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं एंगल निकाल लेता हूँ। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो एंगल रहेगा वो एंगल कुछ, सॉरी, या यार ये पूरा क्यों सेलेक्ट हो रहा है, डोंट नो।
सॉरी, मैं यहीं से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, या सो एंगल के लिए सी, एक ओरिजिन पोल है तो माइनस 90 डिग्री मैंने ऐड कर दिया, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 1 है, मतलब ओमेगा ही है, माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 4 है। ठीक है, सो अभी मुझे क्या निकालना है, ओमेगा पी या फिर फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है, सो मैं यहाँ पे माइनस 180 रख देता हूँ, माइनस 90 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 4, राइट। सो इस तरीके से अभी अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूं तो व्हाट इट विल बिकम माइनस 90। अभी ये देखिए, ये जो माइनस 90 है यहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव 90 बन जाएगा, माइनस 180 माइनस 90 इज अगेन माइनस 90 इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय 4। नाउ ये मैं पूरा माइनस निकाल देता हूँ तो ये सब पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस 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 बन जाएगा। नाउ गाइस, आई हैव गिवन यू वन फॉर्मूला इन द लास्ट क्लास, दैट इज tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी divided by 1 minus AB. Please write it down. Okay, tan inverse of A plus tan inverse of B is equals to tan inverse of A plus B डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो इस केस में क्या होगा, सी दिस इज tan इनवर्स ऑफ ए, tan इनवर्स ऑफ बी, और यहाँ पे भी सी, नाउ व्हाट विल हैपन, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये पॉजिटिव 90 डिग्री है। अभी अभी हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट टर्म, इस कंप्लीट टर्म को tan से मल्टीप्लाई करेंगे। सो tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे tan आ जाएगा, ये tan इनवर्स कट हो जाएगा। सो tan 90 इज इक्वल्स टू दिस मच, ओमेगा प्लस ओमेगा बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4। और tan 90 की वैल्यू जो है गाइज, आई थिंक इट इज इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन की वैल्यू तभी इनफाइनाइट हो सकती है जब ये डिनोमिनेटर जो है वो जीरो रहेगा। सो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 0, या फिर 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाय 4, या फिर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 2 आई। सो दिस ओमेगा इज व्हाट, दिस ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा पी। सो इसकी वैल्यू प्लस और माइनस 2, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस इज रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा की जो, ओमेगा पी की जो वैल्यू है वो मैं 2 ही यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, नेगेटिव में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ओके, सो दिस इज व्हाट, नाउ अभी ये फ्रीक्वेंसी निकल गई, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रीक्वेंसी। नाउ इस फ्रीक्वेंसी का एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा। सी इस पॉइंट पे जो कट कर रही है, जो सी दिस पर्टिकुलर जो ग्राफ मैंने निकाला है ना, ये वाला, ये कर्व जो है, दिस इज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे कुछ ऐसे चेंज होते होते ये फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे कट कर रहा है, दिस विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है कहाँ पे, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। सो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस एट ओमेगा पी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू के अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम रख देते हैं 2। सो के अपॉन 2, अभी यहाँ पे बनेगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। यहाँ पे बनेगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16, दैट इज 20। सो अंडर रूट 5 अंडर रूट 20, दैट मीन्स अंडर रूट 100, and under root 100 means 10, right? So it would be k divided by 20. I hope this is pretty clear for you guys, right? Is it clear till now कि हमने क्या क्या किया यहाँ पे? ओके, सो दिस इज क्लियर। ठीक है,
तो अभी ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है? सो ये मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे आएगा, k बाय 20, ठीक है? सो k बाय 20 जो है, नाउ वी डोंट नो वेदर इट इज़, नाउ वेदर इट इज़ व्हाट वी कैन से, इट इज़, ये जो k बाय 20 है, ये 1 से पहले है, 1 के बाद में है, 1 कहाँ पे हमें पता ही नहीं है। जो अभी -1 की हमें ज़रूरत है ना, तो -1 कहाँ पे है ये हमें पता ही नहीं है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? नाउ फॉर जस्ट एन इंस्टेंस कंसिडर कर लीजिए कि k की जो वैल्यू है वो क्या है? k की वैल्यू है 20 से बड़ी। k इज़ ग्रेटर देन 20। सो इसकी वैल्यू क्या हुई? मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हुई गाइस? इट वुड बी मोर देन 1, मतलब ये मोर देन 1 होगा। बराबर? जो यहाँ पे सर्कल कट कर रहा है, ये जो यहाँ पे कट कर रहा है ना, सो दिस इसकी वैल्यू कुछ तो 1.1 या फिर 1.2 या फिर 1.3 रहेगी, इस प्रोपोर्शन की। सो इसका मतलब क्या है? 1 अंदर रहेगा। इसका मतलब 1 जो है वो इस लाइन के अंदर रहेगा। सो इस केस में हमने क्या किया था? हमने फाइंड आउट किया था। क्या फाइंड आउट किया था गाइस? कि n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इंसर्कलमेंट्स कितने आ रहे थे? n इज इक्वल्स टू आ रहा था -2, राइट? आई होप यू रिमेंबर दिस। जब 1 यहाँ पे आ रहा है, डू यू वांट टू? क्लास खत्म, लेफ्ट कर दो। हेलो, क्लास खत्म हो गया, लेफ्ट कर दो।